वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर वृंदावन वृंदावन रम्यस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमल आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसियाछेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका तार मध्ये रत्नासने बसियाछेन दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि अमिया पड़ीछे खसी हास्य परिहास संभाषणे रूप लावण्य राशि अमिया पड़ीछे खासी हास्य परिहास संभाषणे
नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोरा मने नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरुक मोरा मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Can someone read the translation? Oh beautiful Vrindavan is filled with Chintamani gems and many jewel palaces and temples. Many regal swans play in the waters of Yamuna, and in those waters a splendid golden lotus flower grows. In the middle of that lotus is a golden place surrounded by 8 petals.
On these 8 petals, the 8 principal gopis reside. And in the center, Lord Shyamasundar and beautiful Srimati Radharani sit on a jeweled throne. The great beauty of divine couple and their charming joking and laughter continually shower nectar everywhere. Narottam Das says, I pray that this blissful eternal transcendental pastime of the divine couple may be always manifest in my heart. Jai Shri Vrindavan Dham ki Jai. Hare Krishna. No need. Sorry, Maharaj, I will not Hello. listen to you today. So, as you all know, Maharaj just mentioned, is just jumping from one program to another. So much is jam-packed, so much of his time is required. He's coming after 5 years to Vrindavan. So, for him to give us time at just 4 days advance notice. I just saw him, his video, he was giving class in Vrindavan, and I was driving. I said, well, if Maharaj in Vrindavan, then I must try to ask him, and Maharaj so kindly agreed to give us this slot of time, and which fits in our schedule, very kind of him. So on behalf of all of us, we would like to profusely thank Maharaj for your time, Maharaj, and I would request Govind Priya Prabhu to kindly garland him on behalf of everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Thank you. Very, very happy to be with all of you. Before we begin, I just want to start with a principle that I learnt in life, which is that too much comfort is discomfort, and therefore I want to change this chair. So I will prefer this one. In trying to make our lives comfortable, we create so many complications. And actually we end up being uncomfortable. The most simple our life is, this is so comfortable, nice, simple chair. This is so, you sink into it and then you have to balance all the different parts of your body. Right? You sink in this side, you sink in that side. And Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Tadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahaganda Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swamin Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Bol. So I think most of the devotees have come, Yes, right? yeah. They're all here. They're back. Maybe you can close the door so that the AC can have more effect. Is the door outside closed? Yes, close. That door is closed. So even with this, then I think it will be more comfortable. How many of you, or rather, for how many of you is this the first visit to Vrindavan? Okay, one. Only one. How many of you have actually visited Vrindavan? Nice. There is a difference.
Srila Prabhupada cautions us that simply entering the geographical region that we call Vrindavan is not enough. Although that also is something special. Srila Prabhupada mentions in one place that the moment you, or Hindi में ना, you have to talk in Hindi, right? Hindi. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही हम वृंदावन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं परिसर में, तो चित्त का परिवर्तन होने लगता है और हमें पता चलता है कि हम किसी विशेष आध्यात्मिक स्थान में प्रवेश कर रहे हैं. ये कोई साधारण स्थान नहीं है. तो जब थोड़ी बहुत भी श्रद्धा हमारे अंदर होती है तो और इस प्रकार का अनुभव होता है, तो जो बहुत ही श्रद्धा से, प्रेम से, शरणागति की भावना से यहाँ निवास करेगा, तो उसके हृदय में किस प्रकार का परिवर्तन होगा. यदि हम बिना अपराधों के रहें तो धाम अपराध से बच के रहना ये बहुत आवश्यक है. धाम अपराध हमें हमारे आँखों के सामने एक पर्दा डाल देते हैं जिसके द्वारा हम वृंदावन को नहीं देख सकते. पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते हैं. तो अवश्य वृंदावन एक भौगोलिक स्थान है. मथुरा रेलवे स्टेशन से आते हैं, दिल्ली से कई लोग आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं. परंतु यदि हम वृंदावन धाम को केवल भौतिक दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. यदि हमने वृंदावन को देखा कि अरे इतनी भीड़ है, इतनी गंदगी है, इतनी धूल है, इतना दुर्गंध है, इतना आवाज़ है यहाँ पर, रात को सो नहीं सकते, शांति नहीं मिलती बिल्कुल, कैसे भगवान को याद करेंगे, ये कैसे एक दिव्य स्थान है, इसे धाम क्यों कहते हैं. फिर थोड़े पंडा और पीछे पड़ जाते हैं दक्षिणा के लिए, दान के लिए, जहाँ भी जाते हैं. तो ये कैसे धाम हो सकता है. तो एक दृष्टि से ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ हैं, आते हैं और रहते हैं, सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि धाम के बाह्य दिव्यता को बनाए रखना चाहिए. जैसे कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. यहाँ रहने वाले लोगों की बात एक तरफ की है, लेकिन बाहर से भी जो लोग आते हैं वो गंदगी फैला के जाते हैं. तरह तरह के चीज़ें, प्लास्टिक के थैलियाँ वगैरह वगैरह, यहाँ सब कुछ करके चले जाते हैं. तो धाम सेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हम धाम को स्वच्छ रखें, साफ रखें. इसलिए हम लोग जहाँ भी यात्रा में जाते हैं थोड़ा समय अवश्य धाम की सफाई में लगाते हैं. हम जब किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो मुफ्त में नहीं लेना चाहिए. तो हम धाम की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, धाम से इतना लाभ उठा रहे हैं, लेकिन धाम के लिए हम क्या कर रहे हैं. हाँ ठीक है, यहाँ आके भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का गुणगान करना, भक्तों की सेवा करना, ये बहुत अच्छी बात है, ये भी धाम सेवा ही है. फिर भी प्रत्यक्ष रूप से धाम की सेवा कैसे की जाती है. तो शायद जीव गोस्वामी पाद एक जगह अपनी टीका में कहते हैं कि धाम को साफ करना और साफ रखना ये धाम सेवा भी है. One of the parts of धाम सेवा is to keep the धाम clean. तो इसलिए जब हम यहाँ आते हैं हमें धाम को और गंदा नहीं करना चाहिए. तो जब हम देखते हैं कि यहाँ इतनी गंदगी है, किसी भी कारण से हो, तो सकता है मन विचलित हो जाए.
तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सब कुछ साफ सुथरा रहे, सब कुछ नियमित रूप से चले, परंतु श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की उनका क्या इंतज़ाम है हमें पता नहीं। तो ये सब क्यों होता है वृंदावन में? श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि ये वृंदावन के ऊपर एक माया का आवरण है। आवरण अर्थात पर्दा। और केवल वही लोग वृंदावन को समझ पाएंगे जो इस पर्दे के पीछे क्या है वो देख पाते हैं। ये केवल श्रद्धालु लोगों के लिए है, ये केवल पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट या पर्यटकों के लिए नहीं है। पर्यटक और श्रद्धालु यात्री में अंतर क्या होता है? पर्यटक मनोरंजन के लिए आते हैं और जो श्रद्धालु यात्री होते हैं, भक्त होते हैं, वो श्रद्धा के लिए आते हैं, प्रेम के लिए आते हैं, अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि उनकी भक्ति को हम सस्ता न लें, उनके नाम को, उनके रूप को, उनके धाम को भी। इसलिए उनके धाम को वो ऐसे आवृत कर देते हैं, ऐसे ढक देते हैं, ताकि जो अश्रद्धालु हैं वो सोचें कि अरे कैसी जगह है ये, इतनी गंदगी है, ये तो हम नहीं आएंगे यहाँ पे अभी अगली बार। परंतु जो श्रद्धालु हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जैसे भी हो धाम धाम है। ये सब बाह्य प्रदूषण है, सच्चा वृंदावन तो इसके पीछे है। और उस वृंदावन को देखने की दृष्टि पाने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। और एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं, वो ये है कि जब हम गंगा में स्नान करते हैं तो कभी कभी गंगा में गंदगी दिखाई पड़ती है, कभी कुछ पड़ा हुआ होता है। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उस चीज़ को अलग करके फिर भी डुबकी लगा के आ जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये जल पवित्र है, चिन्मय है। उसी तरह से यहाँ पे वृंदावन के बाह्य क्या कहें, इसके भीड़ में और आवाज़ में हमें हमारी चेतना को खोना नहीं चाहिए, ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए कि सच्चा वृंदावन तो इसके पीछे है। और जब हम भक्तों के संग में आएंगे और सेवा भाव से यहाँ रहेंगे, तब वृंदावन अपने आप को प्रकट कराएगा। The holy dham can be revealed only by service attitude, with a humble service attitude, not by wealth, not by ego, not by intelligence, not by learning, not by austerities. इन चीज़ों से भगवान या धाम प्रकट नहीं होते हैं। केवल कृपा से धाम अपने आप को प्रकट कराता है हमारे हृदय में। So this is the process of revelation, प्राकट्य। प्राकट्य तब होता है जब भगवान प्रसन्न होते हैं, धाम हमारे ऊपर प्रसन्न होता है। तो प्रसन्नता के लिए सेवा भाव सबसे आवश्यक है। There is no place for ego in the spiritual world. Any ego is quickly crushed in the dham. बड़े से बड़े लोग जो भी आएंगे, राजा हो, महाराजा हो, कोई भी हो, पंडित हो, यदि यहाँ चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे तो धाम को नहीं समझ पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें बतलाया है कि हमें कैसे उनको जानना चाहिए, भगवान कृष्ण को जानना चाहिए, हमारा क्या परिचय होना चाहिए वास्तव में। और यदि हमने इस परिचय को स्वीकार कर लिया तो फिर निश्चित धाम और हरिनाम इत्यादि सब प्रकट हो जाएंगे। कोई वो श्लोक जानते हैं? हाँ, वो है, परंतु महाप्रभु जो श्लोक कहते हैं, गोपी भर्तुः
वो पूरा श्लोक। बहुत अच्छा। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। ना मैं ब्राह्मण हूँ विप्र, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ। ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा। ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं वानप्रस्थी हूँ, न गृहस्थी हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ फिर? ये कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दासः। तो वो भगवान कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि को प्रज्वलित करते हैं उनकी दिव्य रोशनी के द्वारा, दिव्य आनंद के द्वारा, तो ऐसे भगवान वो गोपियों के भर्तु, भर्तु अर्थात स्वामी हैं। तो गोपी भर्तु कृष्ण, गोपी भर्तु दास दासानु दासः। तो श्री कृष्ण के दासों के दासों के दास, ये भावना है। इस भावना में ही भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम, उनकी लीलाएं, उनका धाम, इन सब का प्राकट्य हो सकता है। यहाँ अभिमान के लिए, घमंड के लिए, स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। श्री दामा प्रभु ने मुझसे कहा था आप इस विषय पे बात कीजिए कि what is Vrindavan consciousness and how we can cultivate it, how can we maintain Vrindavan consciousness, something, right? Wherever we are. तो ये उत्तर है इसका संक्षेप में। By considering oneself as the servant of all the devotees, not even the servant of the devotees, but many times over. और आप सब तो जानते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस बात को तो प्राय हर प्रवचन में बोलते हैं, है ना। ये सार है, हमारे संपूर्ण दर्शन या फिलॉसफी का सार है। तो वृंदावन is a state of consciousness, not merely a geographical place. भौगोलिक स्थान तो है ही, ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं ना, दिल्ली में बैठे नहीं हैं, बम्बई में नहीं बैठे हैं, वृंदावन में बैठे, तो ये भी एक स्थान है अवश्य, जो कि भगवान ने प्रकट करवाया है। गोलोक वृंदावन जो आध्यात्मिक जगत में है, उसे भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रकट करवाया है अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा। और इस वृंदावन में और उस वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है? आप में से कोई बताना चाहेंगे कि ये जो वृंदावन है और वो वृंदावन है, ये बिल्कुल एक हैं या कोई अंतर भी है, नहीं है, क्या है? इस रहस्य का खुलासा आप में से कौन करेंगे? Anybody? Yes. यहाँ पे demons आते हैं, वहाँ पे नहीं आते। यहाँ पे demons आते हैं, वहाँ पे नहीं आते। ठीक है, अच्छी बात है। और otherwise it is the same. तो प्रभुपाद जी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, फैक्सिमिली। आजकल तो प्रिंटर्स हैं और व्हाट्सएप और ये सब, पहले फैक्स मशीन्स हुआ करते थे। हम एक मशीन में डालते थे और आप दूर कहीं उनको वो कागज़ मिल जाता था। फैक्स, बाय फैक्स वी वुड सेंड। फैक्स का फुल फॉर्म है फैक्सिमिले। फैक्सिमिले का अर्थ है जो बिल्कुल डुप्लिकेट है, बिल्कुल एक समान, जैसे है वैसे। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये भौम वृंदावन, जो भूमि पर प्रकट होने वाला वृंदावन है, ये परव्योम वृंदावन, जो आध्यात्मिक आकाश में होने वाला वृंदावन है, इट्स अ फैक्सिमिले, मतलब परफेक्ट रेप्लिका, डुप्लिकेट, बिल्कुल वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, लीलाओं में थोड़ा बहुत है, क्योंकि वहाँ पे तो असुर है ही नहीं, असुरों को तो प्रवेश है ही नहीं भगवान के धाम में, परव्योम वृंदावन में। अन्यथा दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये श्रद्धा हमें होनी चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत के
थोड़े श्लोक मैं पढ़ना चाहूँगा। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में थे। कई श्लोक वो बोलते थे रथ के सामने, और किसी को समझ में नहीं आता था कि ये कौन से श्लोक बोल रहे हैं और इसका क्या कारण है, क्या मतलब है। और कभी कभी ऐसे श्लोक होते थे जिनका संबंध भगवान से भक्त लोग बना नहीं सकते थे। ये इस तरह का श्लोक क्यों कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। परंतु स्वरूप दामोदर समझ गए। वो एकमात्र व्यक्ति थे जो समझ सकते थे कि चैतन्य महाप्रभु के हृदय का भाव क्या था, और रूप गोस्वामी भी समझ गए। और रूप गोस्वामी ने अपने शब्दों में एक श्लोक की रचना की, और उन्होंने एक पत्ते के ऊपर से लिख के अपने कुटिया के छत में, हरिदास ठाकुर के कुटिया के छत में लगा दिया। महाप्रभु को वहाँ मिल गया और वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भाई तुम्हें मेरी हृदय की बात कैसे पता चल गया। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ये आपकी कृपा का प्रमाण है, क्योंकि आपने रूप के ऊपर कृपा की है, इसलिए रूप गोस्वामी आपके हृदय की बात जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है जो गोपियाँ बोलती हैं। आप में से कोई जानते हैं? आहुष्यते नलिन नाभ पदारविंदम, एक कोई श्लोक जानते हैं? एनीवन? ओके। Who likes to recite verses? Yes? You know the proper meter for reciting? Come, we will recite this verse. What meter will you recite it in? What tune you will use? Ahushate nalina Nabh. Padaravindam. Okay, so you can sit and nicely sing this verse. Ahushate nalina nabh padaravindam. They have to repeat or? No. You just read. You chant. Yogeshware siddhi vichinta agada bodhaihi samsara kupa patito travalambam geham dusham api manasaya Sadhya Udana. udaya sadanaha. Very nice, very nice. Ahushate nalinanabha पदारविंदम योगैश्वरैर्हृदि विचिन्त्यं नगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहं जुषामपि मनस्युदयात् सदा नः. So this is a shloka that was spoken by the gopis, and it is in the 82nd chapter. तो गोपियाँ ये ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग में विश्वास नहीं करती थी। जब उद्धव को भेजा श्री कृष्ण ने ज्ञान योग की शिक्षा देने के लिए, तो गोपियों ने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है। ये ज्ञान योग, अष्टांग योग सब दूसरों से कह देना। हम तो कृष्ण को भूलना चाह रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। तो ये गोपियों की समस्या थी। कृष्ण को भूलना चाहती थी, नहीं भूल पा रही थी। कृष्ण जब चले गए वृंदावन से, तो वो चाहती थी कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, तो हम क्यों याद रखें इस कृष्ण को। तो जितना भी वो प्रयास करती थी कृष्ण को भूलने के लिए, नहीं भूल पाए। उनके लिए ये बड़ी समस्या थी। कृष्ण इनके हृदय को छोड़ते नहीं थे। हमारी समस्या क्या है? कृष्ण को याद करने का संघर्ष चल रहा है ना। गोपियों की समस्या बिल्कुल उल्टी थी। तो वो कहते हैं, हे नलिन नाभ। नलिन नाभ कौन है? कृष्ण। नलिन अर्थात कमल, नाभ नेवल, नाभि। तो हर चीज़ भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कमल पुष्प के समान है। कमल नयन है, कमल मुख है, कमल चरण कमल है, कर कमल है। So everything about Krishna is compared to a lotus, because a lotus is very beautiful and is very pure.
तो हे नलिन नाभ, गोपियाँ श्री कृष्ण का संबोधन करते हुए कहती हैं कि आहो, तो गोपियों ने कहा कि आपके पदारविंद, नलिन नाभ पदारविंदम, आपके पदारविंद को प्राप्त करने के लिए योग योगैश्वरेर हृदय विचिन्त्यम अगाध बोधई। अगाध बोधई मतलब जिनकी बुद्धि बहुत विस्तार है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी आदि हैं, और बड़े बड़े तपस्वी लोग भी हैं, योगी, ये सब आपके चरण कमलों को, पदारविंदम, उनके हृदय में स्थित करने के लिए बहुत लंबे समय से तपस्या करते हैं, और कभी कभी प्राप्त कर भी लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो इतने बड़े बड़े लोग हैं, तपस्वी, ज्ञानी, योगी, ये वो, हम सब कौन हैं? हम सब साधारण संसार कूप पतित, हम संसार के कुएं में पड़े हुए साधारण गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, जो हम यहाँ गांव में रहते हैं। हमें ना तो कुछ ज्ञान है, ना हमें कोई मंत्रों का के बारे में पता है, मंत्र तंत्र आदि कुछ नहीं आता हमें। तो संसार कूप पतित उत्तरण आवलंबम, तो कृपया हमें इस संसार कूप से उद्धार कर दीजिए। गेहम जुषाम अपि मनसी सद उदयात सदानः, तो आपके वही चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहें, वो प्रकट रहें, ऐसी हमारी याचना है आपसे। So I'll read Srila Prabhupada's translation. The gopis spoke thus: Dear Lord, whose navel is just like a lotus flower, your lotus feet are the only shelter for those who have fallen into the deep well of material existence. Your feet are worshipped and meditated upon by great mystic yogis and highly learned philosophers. We wish that these lotus feet may also be awakened within our hearts, although we are ordinary persons engaged in household affairs. श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि गोपियों का मन सदैव कृष्ण भावनामृत में रहता था, और ऐसी भावना केवल वृंदावन में ही जागृत हो सकती है। और चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक को कहने के बाद फिर कहना चाहा कि क्योंकि ऐसी भावना केवल वृंदावन में हो सकती है, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी चेतना के बारे में बात कर रहे हैं, भाव विभोर होके रथ यात्रा के समय। और ये है मध्य लीला का 13वां अध्याय। आपके पास है तो आप, आई थिंक नाउ डेज एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला Chapter 13. Text 137. CC Madhya 13.137. You just Google that, you will get it. Yes, सबको मिला? CC Madhya 13.137. Yes? Yes. अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वने एक कोरी जानी। बोलिए। ताहा तुम्हार पदद्वय करहो यदि उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। तो महाप्रभु कहते हैं अन्यर हृदय मन, जो अन्य लोग हैं उनका हृदय और मन एक होता है, परंतु क्योंकि मेरा मन वृंदावन से कभी हटता नहीं है, इसलिए मैं ऐसे मानता हूँ कि मेरा मन और वृंदावन एक ही है,
मने वने एक कोरी जानी, मोर मन वृंदावन। क्योंकि मैं अन्यों के बारे में उनका मन और हृदय एक है, परंतु मोर मन वृंदावन, मेरा मन ही वृंदावन है। इसलिए मने वने एक कोरी जानी, मैं इन दोनों को एक मानता हूँ, दोनों एक ही हैं। तहाँ तुम्हार पदद्वय करहो यदि उदय। तो इसलिए क्योंकि मेरा मन पहले से ही वृंदावन है और क्योंकि आप वृंदावन को बहुत पसंद करते हो, तो कृपया तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी करहो यदि उदय पदद्वय। तहाँ तुम्हार पदद्वय, तहाँ मतलब वहाँ पे, कहाँ पे? मेरे मन में। मेरे मन में आपके पदद्वय, आपके 2 चरण कमल उदित कीजिए, करो यदि उदय। यदि आप ऐसे करेंगे तो मैं मानूंगा कि आपकी बड़ी कृपा हुई है मुझ पर, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। तो जो अभी हमने श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ा ना, आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंदम, उसी श्लोक का ये महाप्रभु का तात्पर्य है, भावार्थ दे रहे हैं। दिस इज चैतन्य महाप्रभु's realization. He is speaking in the same mood as the gopis have spoken that earlier verse, Ahushchate nalinanava padarvindam, where the gopis are beseeching Krishna to let his feet, lotus feet, awaken within their hearts, even though they don't have the qualification, or at least that's what they say. But they are the most qualified people. So similarly, Chaitanya Mahaprabhu यहाँ क्या कह रहे हैं? उसी भाव में, जिस श्लोक का पठन हमने अभी किया, उसी श्लोक के भाव में महाप्रभु कहते हैं, अन्यों का मन और हृदय एक होता है, परंतु जहाँ तक मेरे मन की बात है, मेरा मन तो वृंदावन है, मोर मन वृंदावन। और इसलिए मन को और वन को, वन कौन सा वन? वृंदावन। एक कोरी जानी, मैं एक ही जानता हूँ, ये वन, मेरा मन और वृंदावन एक है। और क्योंकि आप वृंदावन को पसंद करते हो, वृंदावन में रहना आपको अच्छा लगता है, तो महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण से कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है, तो और मेरा मन तो वृंदावन ही है, इसलिए आपके चरण कमल आप वृंदावन में जगह जगह रखते हैं। तो उन्हीं चरण कमलों का उदय मेरे हृदय में, मेरे मन में कृपया करिए, तो ये आपकी बड़ी कृपा होगी। तो श्रील प्रभुपाद purport is very nice. The mind's activities are thinking, feeling and willing, by which the mind accepts materially favorable things and rejects the unfavorable. This is the consciousness of people in general. But when one's mind does not accept and reject, but simply becomes fixed on the lotus feet of Krishna, then one's mind becomes as good as Vrindavan. Wherever Krishna is, there also are Srimati Radharani, the gopis, the cowherd boys, and all the other inhabitants of Vrindavan. Thus, as soon as one fixes Krishna in his mind becomes identical with Vrindavan. In other words, when one's mind is completely free from all material desires and is engaged only in the service of the Supreme Personality of Godhead, then one always lives in Vrindavan and nowhere else. Hari Bol, Hare Krishna. तो यहाँ अभी तक जो मैंने कहा, अपने शब्दों में आप कौन बताएंगे? ये आहुष्यते नलिन नाभ श्लोक का अपने शब्दों में अर्थ बताइए. Anybody? You just heard in your language, simple words. You can just try to say. Yes. Somebody say. Yes. हाँ बोलिए.
No, I'm just asking about this. The same thing I asked you at that time, that how often should we come to Vrindavan? And you narrated that Vrindavan we should go daily. And we used to come to Vrindavan, in fact, very frequently at that time. And then very slowly, like you speak, you said sometimes that Vrindavan we should go daily in our consciousness. And similarly, like this class, in this class also, I realized that from that day we started reducing our coming to Vrindavan, and wherever we are, whatever in office, at home, so we think about as if we are trying to remember Krishna in whatever duty, responsibilities we are doing. Okay, very nice. Yeah, and the translation of Ahushte Nalin Nava Padarvindam. Yes. हाँ, हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, जो भी. अगर हम अपने मन को, अपनी फीलिंग्स को और अपनी विलिंगनेस को भगवान कृष्ण के चरणों में लगा देंगे, then that मन will become Ganga. बहुत अच्छा. नहीं, इसके पहले जो गोपियों ने श्लोक कहा था, उस श्लोक का अनुवाद आपको याद है? गोपियों ने क्या कहा था? Dear Lord, Yes. your navel is just like a lotus flower. Hmm. Your feet are just like lotus flowers. Worshipped by so many mystic yogis, but we want to always worship them, even though we are engaged in ordinary household activities. Let we pray that those lotus feet may also awaken in our heart. तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, हे कमल नाभ, नलिन नाभ कृष्ण, आपके पदारविंद, आपके चरण कमल सदा पूजित होते हैं बड़े बड़े योगियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा. उनकी तुलना में हम तो कुछ भी नहीं हैं. हम तो साधारण गांव में रहने वाली महिलाएं हैं. न हमें कोई ऊंचा शिक्षण मिला है, न हमें कोई मंत्र आते हैं, न कुछ, न हमने तपस्या की है. किसी भी प्रकार की योग्यता हमारे अंदर नहीं है. हम तो संसार के कुएं में पड़े हुए हैं. फिर भी हम चाहते हैं कि वही चरण कमल हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाएं और निवास करने लगें. सो प्रभुपाद वहाँ क्या कहते हैं कि यही वृंदावन है. सच प्योर कॉन्शियसनेस कैन एग्जिस्ट ओनली इन वृंदावन. तो इस प्रकार की भावना जो गोपियों की है, ऐसे यदि हमने बनाने का प्रयास किया, इसका अनुशीलन किया, इफ़ वी कल्टिवेट दिस सेम कॉन्शियसनेस, देन वी विल ऑल्सो बी रिजाइडिंग इन वृंदावन वेयर एवर वी आर. जहाँ भी हम हों वहाँ पे हम वृंदावन में ही रहेंगे, क्योंकि वृंदावन न केवल एक भौगोलिक स्थान है, परंतु मुख्यतः ये एक चेतना की अवस्था है. It is a state of consciousness above all. One may physically live in Vrindavan and not be in Vrindavan. One may physically live elsewhere and still be in Vrindavan. So the consciousness is more important than the physical location. और हम लोग सब छोड़ छाड़ के सबको यहाँ तो नहीं आ सकते. थोड़े भक्त आ सकते हैं, सभी लोग नहीं आ सकते. तो क्या वृंदावन हमारे पहुंच के बाहर है? नहीं. यदि हम गोपियों के पद चिन्हों में चले और चैतन्य महाप्रभु ने जैसे बतलाए वैसे करें, तो अवश्य ये संभव है. अच्छा, anybody wants to use these chairs also you can use in case more people are coming. If it's getting too crowded, आप थोड़ा सामने आ सकते हैं. You can just move a little ahead and you can put these on the ground. ये बैग्स वगैरह हैं, इनको नीचे रख लो. So you can even sit up if you like. Anybody? नहीं रहने दो. अच्छा, you can send any chairs there. Or no, keep it there so devotees can sit if they like over there. अच्छा, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक का तात्पर्य कैसे दिया? सो हमने 2 श्लोक पढ़े ना.
एक आहुष्टते नलिननाभ पदारविंदम, और दूसरा कौन सा? मोर मन वृंदावन वाला श्लोक। कौन सा? अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन। तो उस श्लोक का तात्पर्य अनुवाद अपने शब्दों में कौन बताएंगे? वी लाइक टू, जस्ट फॉर रिविजन, would like to say, what does Chaitanya Mahaprabhu say in these prayers? He is repeating, he is trying to place himself, not trying to, he is in the mood of Srimati Radharani and the gopis, in the mood of that same prayer. हाँ जी, बोलिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो गोपीज हैं उनका जो माइंड और हार्ट है वो हमेशा भगवान में रहता है, लेकिन जो भी मटेरियल लाइफ में लोगों का जो दिमाग और माइंड और हार्ट है वो एक रहता है, बट मेरा तो माइंड और वृंदावन एक ही है। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या आप अपने लोटस फीट मेरे हार्ट में भी प्रकट करेंगे। तो क्यों प्रकट करना चाहिए उनको लोटस? बहुत अच्छा, परफेक्ट। तो क्यों भगवान को तैयार होना चाहिए वो उनके चरण कमल उनके मन में रखने के लिए? क्योंकि भगवान वृंदावन से एक स्टेप भी बाहर कभी जाते नहीं हैं। तो और अगर मेरा हार्ट वृंदावन है तो आपको मेरे हृदय में रहना चाहिए, क्योंकि आप वृंदावन से बाहर जाते नहीं हैं। हाँ, और आपको वृंदावन बहुत अच्छा लगता अच्छा है, लगता है, आपको पसंद है। तो इसलिए जब मेरा मन ही वृंदावन है तो भी आपके चरण कमल यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ से जाइए मत। तो अनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन, मन वन एक कोरी जानी। तो मन और वृंदावन, मेरे मन को मैं वृंदावन से अलग नहीं समझता, एक ही है। तहाँ तोमार पदद्वय, वहाँ पे, कहाँ पे? मेरे हृदय में, मेरे मन में। तोमार पादद्वय, पादद्वय मतलब आपके दो चरण कमल। करह यदि उदय, यदि आप उनका उदय कराओगे आपके चरण कमलों का मेरे हृदय में, तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी, तब मैं मानूंगा कि आपकी पूरी कृपा मुझ पर हुई है। सो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का उदय हमारे हृदय में हो ही हमारे जीवन की परिपूर्णता होगी। एंड प्रभुपाद जी तात्पर्य में फिर क्या बताते हैं? किसी को याद है अभी हमने क्या पढ़ा था तात्पर्य में? हमारे लिए पद्धति श्रवण कीर्तन और स्मरण की है मुख्यतः, है ना। तो जब हम कुछ सुनते हैं तो एक कान से अंदर दूसरे कान से बाहर निकल जाता है, लीकेज बहुत होता है अंदर से बाहर। इसलिए उसे अंदर रखने के लिए कुछ प्लम्बिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यदि जो हमने सुना है उसको यदि हम दोहराते हैं तो फिर वो रह जाता है अंदर। इसलिए पहले श्रवण, प्रहलाद महाराज जिस क्रम में नवविधा भक्ति के अंगों का उल्लेख करते हैं, पहले श्रवण, श्रवण के बाद कीर्तन। जब श्रवण कीर्तन होगा तो स्मरण होगा। तो अभी आप बताइए, जो आपने सुना, श्रवण किया, उसका कीर्तन कीजिए, अपने शब्दों में बताइए, फिर वो याद रहेगा। ये प्रश्न हमेशा भक्त करते हैं कि हम भूल जाते हैं, है ना। हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। कितने भक्तों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है? सबके मन में होता है। तो उसके लिए उपाय क्या है? केवल श्रवण करने से हम भूल जाएंगे, लेकिन श्रवण के साथ साथ या श्रवण के बाद हम कीर्तन करेंगे तो फिर स्मरण भी हो पाएगा, याद रहेगा सब कुछ। तो श्रवण कीर्तन स्मरण, इस क्रम से सब होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं इस श्लोक के? हाँ जी, हाँ आप बताइए। जहाँ पे कृष्णा है वहाँ पे राधा रानी और गोपियाँ भी है। तो अगर हम कृष्णा को ही अपने मन में सोचेंगे कि मेरे मन में कृष्णा है, तो हमारा मन ही वृंदावन हो जाएगा। हाँ, हम सेवा भाव में अगर रहेंगे और कोई दूसरी इच्छाएं नहीं रखेंगे तो हमारा मन वृंदावन हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि यदि हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर केंद्रित रहता है तो हमारा मन वृंदावन से अभिन्न हो जाता है. If we focus our mind on Krishna all the time, then our mind becomes as good as Vrindavan. तो मन और वृंदावन में कोई अंतर नहीं रहता. जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, मोरा मन वृंदावन. तो जब मन कृष्ण पे केंद्रित होता है तो मन क्या बन जाता है, वृंदावन. और वृंदावन में कौन रहते हैं, केवल कृष्ण अकेले रहते हैं. राधा रानी हैं, गोपियां हैं, गोप हैं, गाय हैं, तो ये सारे हैं. तो अपने आप वृंदावन हम इन सारे कृष्ण भक्त व्रजवासियों से संबंध भी बना लेते हैं. जब हमने श्री कृष्ण से संबंध बना लिया तो श्री कृष्ण से संबंधित उनके जितने भी भक्त हैं, उनका धाम है, इन सब से हमारा संबंध अपने आप स्थापित हो जाता है. So this is a very important point. If one is engaged only in the service of the Supreme Personality of Godhead, then one always lives in Vrindavan and nowhere else. तो इस प्रकार से यदि हम बॉम्बे में रह रहे हों, दिल्ली में हों, जहाँ भी हों, श्रील प्रभुपाद का सूत्र है, फॉर्मूला, just always remember Krishna, serve him nicely, and you will be in Vrindavan. All the time. So this is the way to remain in Vrindavan consciousness. यहाँ पे जब गोपियाँ दिन भर अपने अपने घर के कामों में कार्यों में लगी रहती थीं, जब श्री कृष्ण गायों को लेकर बछड़ों को, गायों को लेकर चराने जाते थे वन में, तो गोपियाँ अपने अपने घर के कार्यों में व्यस्त रहती थीं. कोई मंथन कर रही हैं, दही से मक्खन बना रहे हैं, कोई कुछ. घर के काम इतने सारे होते हैं गांव में. कोई अपने बच्चों का देखभाल कर रही हैं. तो ये सब जब कार्य करती थीं गोपियाँ, तो भगवान कृष्ण के लीलाओं के गीत गाती थीं. दशम स्कंद में यदि हम पढ़ें जो तात्पर्यों में, तो ऐसे बताया जाता है कि वृंदावन में कई कवि भी ऐसे रहते थे, प्रोफेशनल पोएट्स. और प्रतिदिन जब श्री कृष्ण लौट के आते थे वन से गायों को चराकर, तो सारे दिन की खबर मिल जाती थी. सारे मित्र उनके आके खबर बताते थे, अरे आज ऐसे हुआ, ये हुआ, ये असुर ऐसे आया था, कृष्ण ऐसे इस तरह से उनका वध कर दिया. तो जो भी जितने भी कार्य श्री कृष्ण करते थे ग्वाल बालों के साथ और गायों के साथ, वो सारे खबरें, आज की ताज़ा खबर आ जाती थी पहले. तो उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक की आवश्यकता नहीं थी. ये आँखों देखा हाल सब आ जाता था. और फिर ये कवि जो थे अपने शब्दों में इन लीलाओं को गीत के रूप में इसकी रचना करते थे. और फिर सारे गोपियाँ हैं, वो दिन भर इन गीतों को गाती थी. In that way, the gopis of Vrindavan were always Krishna conscious because they were always reciting the pastimes and glories of Krishna. So this is a very nice way to be Krishna conscious. Always chant the holy names. You can hear so many nice melodies of the Mahamantra and other bhajans, and keep chanting them, keep reciting them. The mind will always be fixed on Krishna consciousness and in Vrindavan. Hare Krishna. श्री वृंदावन धाम की जय. तो श्री दामा प्रभु और किशोरी माता जी ने बताया कि आपको आना है. हम मना नहीं कर सके. कहा चलो आप सबका संग भी मिल जाएगा. तो आप सबको देखकर बड़ा अच्छा लगा. और आप इतने जगह जाके आए. भांडीर वन भी गए आज, और मानसरोवर आज गए. फिर गोवर्धन परिक्रमा हो गई, कल करेंगे. लाखों लोगों के साथ करना होगा. Very close association. आप वैसे परिक्रमा नहीं भी करेंगे ना तो अपने आप निकल जाएंगे. जैसे बॉम्बे की रेलगाड़ी होती है ना,
अब रहते हैं, उतरने की हैं, अब दरवाजे में आप निकल जाएंगे अपने आप. हरे कृष्णा. तो किसी के कोई प्रश्न आदि का? हाँ जी. जैसे आप बता रहे थे अभी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग अस हाउ वी कैन ऑलवेज बी इन वृंदावन कॉन्शियस. जैसे आप अभी बता रहे थे कि गोपियाँ हमेशा जो गीत है वो गाती थी, उनकी जो हाउस होल्ड ड्यूटीज है करती थी. अगर हम लोग ऑफिस जाते हैं तो 9 घंटे हमारे ऑफिस में जाते हैं, 9 आवर्स, एंड वी आर pulled in different directions in office. It's very difficult to remember anything there. You are always firefighting. So that if you can just enlighten us how we can spend that time also while we. How can you be Krishna conscious in office? That's your question. Yes? When there's firefighting, how can we be Krishna conscious? Yeah, so in office. Yes. Or firefighting at home? Office or home? His wife is sitting here even with the right answer. So this is a very common question. Ki how can one be Krishna conscious in office? And the answer is very simple. You can be Krishna conscious in office by being Krishna conscious when you are not in office. If you cultivate practicing Krishna consciousness when you are not in office, then automatically you will be Krishna conscious in office. That's the most important thing. And then फिर आप जब ऑफिस जाओगे तो फिर ठीक है, वहाँ कृष्ण कॉन्शियस रहने के लिए कोई आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं. स्क्रीन सेवर पे भगवान की लीला लगाओ, अपने डेस्क पे कुछ चित्र रखो, लंच टाइम में किसी से बैठ के भागवतम पढ़ो. You can do so many little things to remind you of Krishna throughout the day, even when you are at work. But principally, you have to be Krishna conscious when you are not at work. Then automatically that consciousness will carry you forward through your working hours. ठीक है? So you can tackle all the fires like that. Yes. When we are not at work and we get distracted sometimes from the sadhana or the Krishna consciousness that we should be doing. So, maybe because the mind is distracting, so we are not able to come back on track. So, how frequently accountable should we to our authorities so that it can be brought on track and we don't make the same mistakes by getting distracted? Or what other solution can we do? That you can discuss with them and see. Every situation is unique. That you discuss personally and see. Okay? Yes. Thank you, Maharaj. In one of the lectures, Surnes Radha Govind Goswami Maharaj was explaining कि जब एक भक्त का भगवान से प्रेम बढ़ता है तो उसकी पुनः पुनः धाम जाने की इच्छा करती है. And वह बार-बार धाम जाता है, धाम की सेवा करता है. So when we are understanding this concept that how to remain in consciousness, and then again if your desire is to come, like Srinivas Prasad Prabhu was mentioning, to come again and again to Holy Dham, how to balance that and understand? Now you can come, but it is not possible for everyone to come like this. If you are staying in Delhi or Agra or some place close by, it's easy. Just come 2 hours, 3 hours, you are here. But if you are staying far away, it is not easy to just leave everything and come here. So once in a while it is important to come to Vrindavan. But for most devotees, frequently coming is not a practical option for various reasons. So therefore we have to practice this formula. Number 1. Number 2, if everybody came to live in Vrindavan, and that's how it seems it's now, whole world is coming to Vrindavan, Vrindavan will not be able to handle it.
at least the external part of Vrindavan. And thirdly, if everybody comes to Vrindavan, then who will spread Krishna consciousness everywhere else? Right? So some people will come and stay here, okay. And others will come and visit as and when it is possible for them to come. ठीक है. But we have to also look after so many other things. Even our Krishna conscious duties and services, that also should go on. ठीक है? Yes. Maharaj, all this while we focused on building our relationship with Krishna, to see him as a brother, a friend, a father, etc. But how do we strengthen our relationship with Radharani? How do we look at her? How do we learn more about her and understand more about her primarily? And in which relationship should we look at her? High question. Principally, as Srila Prabhupada is saying in the purport, Krishna is the root of all existence, है ना? जड़ को यदि हमने पानी दे दिया तो वो जल सब जगह पेड़ में फैल जाएगा. If you establish a relationship with Krishna, you automatically establish a relationship with everyone and everything connected to Krishna. So then you will automatically be connected to Srimati Radharani. So, and Radharani and Krishna are together. You cannot separate them. So when you worship Krishna, automatically Radharani is there. So we worship Radharani and Krishna together. And we worship Radharani also, that is our Gaudiya line, to get. So we try to serve Srimati Radharani so that she will be pleased with us and she will recommend us to Krishna, as Prabhupada says. And Krishna will also be pleased to us, because whatever Radharani says, Krishna cannot say no to it. So for us, although our acharyas have been mostly manjaris and so on and so forth, but they teach us how to strictly follow in the footsteps of the Guru Parampara. And that is our way of establishing the connection with Srimati Radharani, with Sri Krishna and so on, all the residents of Vrindavan. Just step by step following these practices, automatically this will come. This will happen. So we can worship Laddu Gopal alone, but we can't worship Radharani alone. Well, Laddu Gopal, because that's Balya Leela. So in Balya Leela there is no Radharani, there is no Madhuri Ras at that time. Madhuri Ras is in Kaishor Avastha, when Krishna has gone beyond boyhood also, and he has reached adolescence, Kaishor Avastha. So generally we don't worship Radharani alone, because wherever you want to please Radharani, right? You don't want to worship her just for the sake of worshipping her. You want to worship her to please her. And she is very pleased if you serve Krishna. And Krishna is very pleased if you serve Radharani. So you serve both. That is why we have the Hare Krishna Mahamantra, which is Hare and Krishna, Radharani and Krishna. So the two are not different. Radha and Krishna are one. So we don't try to see a distinction like that. But the bhav of our Gaudiya line is they are servants of Srimati Radharani. They are assisting her in her service to Krishna. Okay? Hanji. महाराज आज के वर्ष में मन और हृदय दोनों का उल्लेख है. तो मन हमारा चंचल है, बलवान है, रिबेलियस है, उन्चगल है, और हृदय में सदियों से बहुत सारे अनर्थ है. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये तो मेन है. इनके अलावा बहुत सारे चरित्र दोषों से हम भरे हैं. जैसे फियर है, रिजेंटमेंट है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज, ओवर सेंसिटिवनेस, एनवियस, जेलसी, कई सारे ऐसे चरित्र दोष हैं. तो मन को हम किस तरह से प्रशिक्षित करें
ताकि हमारे हृदय की अनर्थ निवृत्ति भी साथ साथ चले। तो दोनों का एक दूसरे के साथ में चोली दामन का साथ है। श्रवण कीर्तन और सेवा भाव का अनुशीलन, बस एवरीथिंग विल कम। सिंपल आंसर। ओके, हरे कृष्णा। अभी हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन। यस। महाराज, हम जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना चाहते हैं, लेकिन हम मटेरियल उसमें रह रहे हैं, तो कोई ना कोई कुछ बात ऐसी हो जाती है कि हमारी तो पूरी कॉन्शियसनेस बदल जाती है। जब तक उसको मुश्किल से ठीक करो फिर कुछ हो जाता है, क्योंकि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग तो होगा नहीं। तो उसको कैसे, उस सिचुएशन में हमको अपने आप में कैसे, मतलब कि हम उनसे डिस्टर्ब ना हो हमारा, उसको कैसे हम। आपकी जो समस्या है ये प्रत्येक मनुष्य की समस्या है, सारे भक्तों की समस्या है। कोई राहत नहीं है यहाँ पर, नो रिलीफ। एक के बाद एक कुछ न कुछ होता है। होगा तो होगा, सो होगा। हमें अपनी भक्ति करनी है, दुनिया में जो होना है होने दो, बट डोंट स्टॉप योर भक्ति। जो भी कुछ उतार चढ़ाव आएंगे जीवन में, तरह तरह के कठिनाइयाँ आएंगी जाएंगी, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में। जिद पकड़ के रखना, हमें करना ही करना है बस। हाँ, मन नहीं लगता, मन लगे न लगे करना है। ये मन की बात नहीं, करना है हमें। जिद होना है, बस करना है। ठीक है? Okay, Sri Dhamma Prabhu, yes, okay. So today's program, you are going anywhere now today? There is some local event which the devotees have kept. अच्छा, ठीक है. But otherwise it is because they have been everybody has been traveling since. Tired. With but thank you so much, Maharaj. It's a pleasure. For association. So everyone will remember these two verses. Yes. I was thinking that if coming to a dham is incomplete till we hear from the sadhu. That is the main purpose. I thought that if we get association of a sadhu, we hear from you, then it is a complete visit. That I don't know, but at least you are all happy in your visit. You are being to so many nice places. You have always been our Prathapadharshika Guru for so many years. In our initial days, you have inspired us so much, and I think we are caring for the same. So whenever we hear you, meet you, it inspires us so much. Thank you so much. Jai. Thank you everyone for coming, and carry Vrindavan with you in your heart. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna.